Now here we learn about the statistics. So in statistics we see the measures of dispersion. Now what is the measures of dispersion? Dispersion means we have to say that it is a scattering of data. That means measure of dispersion means how the data scattered around the mean, or we have to say that median also. So मीन और मीडियन के अराउंड डेटा किस तरह से स्कैटर्ड हुआ है वो मेजरमेंट लेना है. इसका मतलब है कि वी हैव टू से दैट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हाउ द डेटा स्कैटर्ड अराउंड द मीन और मीडियन. वी हैव टू से दैट इट इज अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. नाउ what are the different measures of dispersion? Now first is range, second is mean deviation, third is standard deviation, fourth is variations. So these are the four measures of dispersions. Now we have to take one by one. So to find out the range, take data, some raw data or ungrouped data or group data, and by using that we have to find out the range. So first we see range, and another is coefficient of range. Okay. रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. लार्जेस्ट का मतलब एल लेते हैं और स्मॉलेस्ट का मतलब एस लेते हैं. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस. For example, here we take a raw data, find range and coefficient of range. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So here largest observation L is equal to 6. Smallest observation S equal to 1. So therefore range is L minus S, 6 minus 1 that is 5, and coefficient of range L minus S upon L plus S, 6 minus 1 upon 6 plus 1 that is 5 by 7. So coefficient of is always less than 1. So remember these things. So this is a range and coefficient range of raw data. Now we see the range and coefficient of range of ungrouped data. So ungrouped data means with frequency and without frequency. So for example, find range and coefficient of range of the following data. Now here xi, fi, 10, 20, 30, 40, 50, 7, 5, 3, 2, 1. Now remember here, range is only concerned with observations. यानी फ्रीक्वेंसी के साथ रेंज का कोई भी लेना देना नहीं है. ऑब्जर्वेशन के साथ ही आपको रेंज जो भी है वो मिल जाएगा. अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, लेकिन रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही देखने हैं, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है. सो फॉरगेट अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी, वी थिंक ओनली अबाउट द ऑब्जर्वेशन. Here largest observation is 50 and smallest observation is 10. So therefore
range is L minus S, 50 minus this, that is 40. Now, what about the coefficient of range? And coefficient of range is L minus S upon L plus S, 50 minus 10 upon 50 plus 10, 40 upon 60. That means here we get 0.67. So in such a way, we have to find out the range and coefficient of range of the observations. So these are the questions asking mostly for 1 marks. So now here the group data is given. Here we find out the range and coefficient of range. Now here the marks, that means you have to say that these are the observations and these are the frequency. 0 to 10, 10 students है, 10 to 20 में 20 students है, 20 to 30 में 15 students है. That means observation is this one and frequency is this one. So to find out the range and coefficient, we think only about the observations, not about the frequency. So here given largest observation is equal to, कौन सा है largest observation? 60 and smallest observation यानी 0. Okay. So therefore range is L minus S, 60 minus 0, that is 60, and coefficient of range L minus S upon L plus S, 60 minus 0, 60 plus 0, 60 upon 60, that is 1. So in such a way we have to find out the range and coefficient of range of the given data. Now here another example. Here also the data is given and here we find out the range and coefficient of range. Now here first you see whether the data is continuous or not. Here we see the data is not continuous. That means here 25, 26, then 27, 28. That means here the data 26 और 27 तक का जो डेटा है वो नहीं दिए है. तो सबसे पहले जो इंटरवल दिए है वो उसको कंटिन्यूस करना है, उसके बाद ही आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है. अगर आप ये कंटिन्यूस नहीं करते हैं तो आपका रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. तो हाउ यू फाइंड आउट द क्लास एरर? क्लास एरर के लिए पहले 27 माइनस 26 अपॉन 2 यानी 0.5 का एरर है. तो 0.5 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और अपर जो भी है उसमें ऐड करो. लोअर जो है वो 25 उसमें से सब्ट्रैक्ट करो और अपर 26 है उसमें ऐड करो. तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब ये होता है एक्स है और या सी है. ओके. और ये होता है एफ आई. तो यहाँ पे सी आई और एफ आई. तो क्लास इंटरवल जो लोअर लिमिट है 25 उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 24.5. अपर लिमिट 26 है उसमें ऐड करो 26.5. अभी बीच में के जो ऑब्जर्वेशन है उसको छोड़ दो क्योंकि हमको लास्ट वाले ऑब्जर्वेशन चाहिए. 35 में से सब्ट्रैक्ट करो सो 34.5 और सबसे लास्ट में आएगा 36.5. फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है आपको. तो यहां पे जो लार्जेस्ट है L दैट इज 36.5 और स्मॉलेस्ट दैट इज S स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 24.5. सो देयरफॉर रेंज इज L minus S 36.5 24.5 and coefficient of range is L minus S upon L plus S, that is 36.5 minus 24.5, 36.5 plus 24.5. So find out the answer. Range is 12 and the coefficient of range 0.20. So in such a way, if the intervals are not continuous, then you
continuous all these interval first, and then you find out the range and coefficient of range. Now, the another measure of dispersion is mean deviation. Mean deviation, that is denoted by m dot d. Now here we find out mean deviation by using mean as well as by using median also. अभी आपको mean तो पता ही है, addition of all the observations upon total number of observations. तो जो raw observations दिए रहते हैं उसमें frequency नहीं आता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी रहता है उसके लिए फॉर्मूला अलग है. तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला मीन डेविएशन. मीन डेविएशन दैट इज समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन. डी आई का मतलब होता है डेविएशन. डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड मीन. यानी ऑब्जर्वेशन और मीन का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं डेविएशन. अब मॉड का मतलब होता है यू ऑलवेज टेक अ एब्सोल्यूट डिफरेंस, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यूज आपको लेना है. तो यहाँ पे डी आई का जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई माइनस एक्स बार. यानी ये ऑब्जर्वेशन है और ये जो है वो मीन है. मीन का फॉर्मूला आपको पता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एडिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नाउ हियर वी कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. तो सबसे पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. तो इसका मतलब है कि एक्स बार का मतलब होता है मीन या मीडियन, जो भी है आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. तो सबसे पहले मीन निकालते हैं. तो 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 3 3 6 2 8. करो कैलकुलेशन कितना आता है. सो मीन इज 76 अपॉन 8, दैट इज 9.5. सो इन सच ए वे फर्स्ट वी फाइंड आउट द मीन. अभी हम टेबल निकालते हैं क्योंकि हमको डी आई फाइंड आउट करना है. तो एक्स आई, उसके बाद मॉड ऑफ डी आई दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार. देखिए अभी सबसे पहले अभी आप जब टेबल ड्रॉ करते हैं तो टेबल ड्रॉ करने के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है. जैसे कि अभी सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 3, उसके बाद छोटा ऑब्जर्वेशन है 5, उसके बाद 6, देन 7. ओके, 7 के बाद आता है 10, 7 के बाद 10, 10 के बाद 12, 15 and then 18. So these are the ascending order of the observations. Now mod of xi, xi का मतलब 3, x बार का मतलब 9.5. अब ये क्या है मॉड है, उसके कारण आपको जो भी वैल्यू लिखनी है वो पॉजिटिव में ही लिखनी है. और जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन में ही मॉड आता है, बाकी किधर भी मॉड नहीं आता है. सो रिमेंबर 18 minus 9.5. So we write down here it is 6.5, 3.5, 4.5, 2.5, 0.5, 2.5, 5.5 and lastly 8.5. अभी हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी है, यानी ये जितनी भी सारी है इस सर की एडिशन. तो समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई जो है वो 34 है, उसकी सबकी एडिशन. सो देयरफॉर
mean deviation is equal to summation of mod of di upon n, that is 34, और n का मतलब total number of observation, so it is 8. So 34 upon 8, that means mean deviation is 4.25. तो डेविएशन का वही मीनिंग है कि ऑब्जर्वेशन और मीन ये दोनों का जो डिफरेंस है उसका समेशन आना चाहिए, यानी उन सब का एडिशन आना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, मार्क्स दैट इज एक्स आई ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब एफ आई. फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन, यानी 3 मार्क एक स्टूडेंट्स को है, 4 मार्क 3 स्टूडेंट्स को है, 5 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स को है, 6 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स को है, 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को है, 8 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नेचुरली जो फ्रीक्वेंसी है उसका एडिशन आपको लेना होगा. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिया है. मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. यहाँ पे n का मतलब जो है वो समेशन ऑफ एफ आई होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसका एडिशन का मतलब होता है n. समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू n. तो पहला जो फॉर्मूला था जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी वो समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन n था. तो जैसे फ्रीक्वेंसी आ गई है समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ डी आई अपॉन एफ आई. डी आई आपको पता है एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार का मतलब मीन. मीन का भी फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला कि मीन का भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. जब फ्रीक्वेंसी आता है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एंड वेयर डी आई इज द डेविएशन दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार. तो देखिए अभी लिखते हैं यहाँ पे गिवन एक्स आई एफ आई. ओके, तो देखिए एक्स आई 3 4 5 6 7 8, एफ आई 1 3 7 5 2 2. तो अभी हमको क्या चाहिए, सबसे पहले मीन चाहिए, तो पहले एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे. देखो एफ आई एक्स आई क्या आता है 3 12 35 30 14 एंड 16. तो यहाँ पे n का मतलब समेशन ऑफ एफ आई कितना आता है 20, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करो कैलकुलेशन. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आता है, it is 110. So therefore x bar is summation of fi xi upon summation of fi. 110 upon 20, that is 5.5. So in such a way we get mean, that is x bar. अभी देखो यहाँ पे अभी क्या फाइंड आउट करना है हमको, मॉड ऑफ डी है एक्स आई माइनस एक्स बार. तो एक्स आई तो इधर ही है, एक्स आई का मतलब ये 3 माइनस 5.5, आफ्टर देन 4 माइनस 5.5, आफ्टर देन 5 माइनस 5.5, देन 6 माइनस 5.5, देन 7 माइनस 5.5, and lastly it is 8 minus 5.5. देखो मॉड है उसके कारण हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है यहाँ पे. तो क्या आएगा बोलो, सबसे पहला ओनली पॉजिटिव बिकॉज वी टेक मॉड. 2.5 1.5 0.5 0.5 1.5 2.5. लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, ओनली डी आई नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आपको एफ आई भी चाहिए. तो यहाँ पे लिखना है एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई. एफ आई का मतलब ये और ये 2.5 इंटू 1 2.5, 1.5 इंटू 3 4.5, दिस इज 3.5, दिस इज 2.5,
this is 3.0 and this is 5.0. So in such a way we have to take FIDI. Now summation of mod of FIDI, यानी इनका समेशन लेना है क्योंकि हमको फॉर्मूले में वही चाहिए, समेशन ऑफ FIDI. So it is 21. Okay, so therefore mean deviation is equal to summation of Fi into mod of Di upon n और summation of Fi. तो क्या आता है 21 अपॉन n क्या है 20. तो बताइए क्या आता है 1.05. So in such a way we find out the mean deviation of group ungrouped data with frequency. Now we see the third measure of dispersion, and it is the standard deviation. Now standard deviation is denoted by sigma. This is a notation coming from 1 marks also. The notation of standard deviation is, so it is a sigma, and the formula, this is for raw data without frequency. Sigma is root of summation of di square upon n. di का मतलब अगेन इट इज xi माइनस x बार. जिस तरह से हमने मीन डेविएशन में फाइंड आउट किया था वैसे सिर्फ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस इतना ही है कि मीन डेविएशन में मॉड आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में डी का स्क्वायर आता है. दिस इज अ मेन डिफरेंस इन बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ पे मॉड नहीं रखना है आपको. अगर आप मॉड रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ही रखना है डी का. नाउ लेट्स वी सी द एग्जांपल्स. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. So raw data it is given 25, 30, 50, 70, 42, 36, 48, 34 and 60. तो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो देखिए सबसे लोवेस्ट 25, उसके बाद 30, उसके बाद 34, then 36, after then 42, 48, then 50, then 60, and at the end it is 70. So in such a way we write down all the observations 25, 30, 34, 36 in ascending order. Now xi सबसे पहले आएगा xi और उसके बाद di, that is xi minus x bar. तो इसमें मॉड नहीं आना चाहिए, ध्यान रखो. 25, then 30, 34, 36, 42, 48, 50, 60 and 70. तो देखते हैं यहाँ पे x बार. x बार का मतलब 25, 30 प्लस 70, टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करो. तो x बार कितना आता है देखो, चेक करो. सो इट शुड बी around 395 upon 9, so that is 43.88. So in such a way we get mean of di. xi 25 minus 43.88, 30 minus 43.88, 34 minus 43.88, 36 minus 43.88, 42 minus 43.88, 48 minus 43.88, 50 minus 43.88, 60 minus 43.88 and 70 minus 43.88. तो माइनस में है तो माइनस में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस आफ्टर देन minus 6.12, minus 13.88, after then minus 26.12, then minus 1.88, then plus 7.88, then 4.12, then 9.88 and at the end we get 16.12. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही और एक रो आएगा,
दैट इज डी आई स्क्वायर। तो डी आई स्क्वायर में 356.45, 37.45, 192.65, देखो माइनस है तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 682.25, 3.53, 62.09, 16.97, 97.614 और लास्टली 259.85। तो देख लीजिए मेथड जो है, सबसे पहले xi लिखा, उसके बाद di का मतलब डिफरेंस इन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड मीन, मीन फाइंड आउट किया, सब का एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, तो इट इज 43.88। फिर xi और मीन का डिफरेंस मैंने फाइंड आउट किया, तो ये नेगेटिव में आया और कुछ पॉजिटिव में आया, लेकिन स्क्वायर के बाद जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, यानी ये जितने सारे हैं उसका एडिशन निकालना है। सो इट शुड बी अराउंड 1708.85। सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन। So it is 1708.85. n का मतलब total number of observations. So it should be 9. So here we get the value of sigma after calculation. It is 13.779. So for raw data, we have to find out the standard deviation in such a way. Now here we see the fourth one. Variance and coefficient of variance. This is the fourth measure of dispersion. Variance का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सो इट इज डिफाइंड एज सिग्मा अपॉन एक्स बार, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अपॉन मीन। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, दैट इज दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। एंड द लास्ट पार्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द सेट। आपको कोई भी दो सेट दिया रहेगा, उसमें से आपको सबसे ज्यादा कंसिस्टेंस कौन सा सेट है वो बताना होगा। तो हाउ यू डिसाइड, कैसे डिसाइड कर पाएंगे आपकी कौन सा सेट ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो एक बात ध्यान में रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिस सेट का कम रहता है वो सेट जो है वो मोर कंसिस्टेंट रहता है। देखो आप यहीं पे गलती करते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, जिसमें लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसमें लेस होता है वो सेट सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, इतना ध्यान में रखो। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल आस्किंग फॉर 1 मार्क्स। सो सेट 1 एंड सेट 2 are given here. The mean of the first set is 82.5, the mean of the second set is 48.75. The standard deviation of set 1 is 7.3 and the standard deviation of set 2 is 8.35. Now we have to prove here which one set is more consistent. Solution for set 1, coefficient of variance that is sigma upon x bar into 100। अब पहले सेट के लिए सिग्मा 7.3, x बार दिया है 8.5 into 100, तो इसका कैलकुलेशन जो है वो आता है 8.848%। कोई जो भी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो हमेशा परसेंटेज में लेना है। नाउ फॉर सेट 2, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू अगेन सिग्मा, दूसरे सेट का सिग्मा 8.35 दिया है अपॉन मीन दिया है 48.75 into 100। तो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, वो आता है 7.12%। अभी देखो सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 8.848 है और सेट 2 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 17.2। तो दोनों में से कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो देखना है। तो दोनों में से नेचुरली सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है सेट 2 से, सो देयरफॉर सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट देन सेट 2। हियर सेट 1 इज मोर कंसिस्टेंट देन सेट
2, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है सेट 2 का वो ज्यादा है सेट 1 से। ओके